Bismillahir Rahmanir Rahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind, and grateful. Welcome, my dear students. I am Waqas Ahmad, and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. Today, we are going to discuss one of the important topics for paper, and you must know that this topic has very vital role in attempting the paper. As you know better that in the paper, section C has got a wide space for students to write from their own mind or from their own capability and capacity. Keeping these things in mind, let me remind you that in paper you will be having question number 4 in section C. It may be a question of a letter, it may be a question of an application. And do not forget and always keep this thing in your mind that this very question, this very section part has got only 10 marks, and these marks can be easily achieved by adopting, by following the rules. What are the rules? How we will implement those rules for getting those marks without any external barrier, without any external hesitation or disturbance. So, the students, I have made the shape or the pattern or the you can say road map how to travel on that very road, how to achieve marks in paper, and it's not that much difficult, it's quite easy. But what is difficult? The difficulties you people will be having in how to keep these different strategic points, strategic road map in your mind. These some of the points show difficulties, and they are a kind of barrier for us. So, to get out from these difficulties, I have drawn and I have to show how to attempt that very question. तो students, आइए ज़रा देखते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरह लिखना है, और ये जहन से नहीं निकालना चाहिए कि it may come, it may not come in a paper. It's not necessary, but sometimes this question has a kind of a replacement with a letter, and a letter और एप्लीकेशन में आप लोगों के पेपर में एक ही इस्तेमाल होता है और आता है, और एक के 10 मार्क्स ही होते हैं. हाउ टू गेट दीज 10 मार्क्स? लेट्स हैव डिस्कशन ओवर दिस फेनोमेना इन दिस सिचुएशन. क्लियर? याद रखिए, एप्लीकेशन को कहाँ से स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन को कहाँ तक ख़त्म करना है, मिड में किस तरह अपने सफ़र को रवा दवा करेंगे. इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे. क्लियर? सबसे पहले ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि आप लोगों के पेपर के मुताबिक एप्लीकेशन की जो वर्ड्स होगी वो स्टार्ट और आगाज़ और जो इनिशिएटिंग है, इट मस्ट बी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पेज, राइट साइड ऑफ योर पेपर शीट, वर्कशीट. जिस पेज के ऊपर यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग और समथिंग, यू must take care of the starting area. Why is it so? Because this is the mandatory placement of the starting of an application. Clear? तो राइट साइड से अगर आपने स्टार्ट लिया, फिर क्या लिखना है उसके अंदर? Remember, it was the old method that we used to write to at the starting of in any application. लेकिन आजकल the word to, preposition you can say or whatever, it has no place in modern application department. It has lost
its position, its worth. क्लियर? तो एप्लीकेशन को बगैर टू से स्टार्ट करनी है, राइट साइड से स्टार्ट करनी है, और ये हम यहाँ पर ये आर्टिकल द या दी क्यों इस्तेमाल करते हैं? जस्ट टू स्पेसिफाई दैट वेरी पर्सन, कि किसकी तरफ हमारा डायरेक्शन या किसकी तरफ हमारी जो यहाँ पर वो मंसूब होना है उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। आइए ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फिर देखते हैं कि हमने किस तरह इसकी डेवलपमेंट की है और किस तरह इसको इख्तिताम पजीर तक पहुँचाना है, आखिरी पॉइंट तक। क्वेश्चन इज एप्लीकेशन टू वापडा फॉर न्यू कनेक्शन। आप लोगों ने नए घर की जो तामीर की है, मुबारक हो आपको, उसके लिए लाइटनिंग और बिजली का सिस्टम भी ज़रूरी है। उसी के लिए आप लोगों के हाँ मीटर और ये लाइंस आप लोगों ने अंदर जो फिटिंग है या लाइटनिंग थी वो तो आपने अपने तरीके से और अपने तरतीब से बराबर की हैं, लेकिन मेन कनेक्शन नहीं आया है। इस मेन कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपने अंदरूनी काम का ख़ात्मा करना ज़रूरी है, ताकि वो अगर आ जाए तो क्या काम करता है या नहीं करता। फिर वापडा की तरफ आपने डायरेक्शन और अपने आप को मोड़ना है। वहाँ पर जो अजीज़ शख्स बैठा होते हैं SDO, और ये SDO वहाँ पर क्या करते हैं? ही हैज़ गॉट द अथॉरिटी ऑफ दीज थिंग्स। उसके नेम पर एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है कि सर, रिस्पेक्टेड सर, मेरे घर में, या यू कैन आल्सो से दैट ओल्ड हाउस के लिए भी है, ज़रूर नहीं कि नए घर के लिए सिर्फ हो, कि मैंने घर में मुरम्मत की है या मैंने नई घर की जो तामीरात की हैं उसमें मैंने लाइटनिंग और बिजली का इंतज़ाम की है, लेकिन सर वहाँ पर मेन कनेक्शन नहीं है। आपकी गुजारिश के साथ और आपके इजाज़त के साथ हमें वो कनेक्शन चाहिए। तो फिर क्या होगा? एंड दे आर nowadays very well and they are doing their own job honestly। तो वो फिर क्या करेगा? आपने जो एप्लीकेशन लिखी है उस पर साइन करके स्टैम्प लगाकर ही विल से दैट गो अहेड, प्रोसीजर आगे जाएगा। तो उसके नाम पर एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है, उस एप्लीकेशन को हम मेंशन करना है। बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया कि नए घर के लिए भी हो सकता है, पुराने घर के लिए भी हो सकता है, हॉस्टल के लिए भी हो सकता है, फैक्ट्री के लिए भी हो सकता है, या अपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, स्टोर के लिए भी हो सकता है। Many things in the world you can have for different things। क्लियर? उन सब को मद्देनजर रखते हुए you can have जो लाइटनिंग और बिजली का जो इंतज़ाम करना है। राइट साइड रिमेंबर इन योर माइंड द SDO वापडा पेशावर। सपोज वी आर लिविंग इन पेशावर, लाहौर में भी, कराची में भी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में लोग रह सकते हैं और रहते भी हैं। मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेशावर को मैंने मुख्तस किया, और इसी पेशावर के अंदर जो वापडा सेंटर है या वापडा डिपार्टमेंट है उसमें जो SDO है उसके नाम पर मैंने लिखा है। क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन। सर से रिक्वेस्ट है कि मुझे नई कनेक्शन चाहिए। याद रखो कि यहाँ पर जो आपने ये सब्जेक्ट तो मेंशन किया, सब्जेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि अक्सर वहाँ पर हेडिंग लोग नहीं देते, एप्लीकेशन है, हाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए लिखना है, ये उसको मेंशन करना ज़रूरी है। फिर आपने सर की बिल्कुल नीचे बॉडी का आगाज़ करना है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, बॉडी में दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, ताकि वो हम अपने जहन में रखिए। वो दो पॉइंट्स कौन से होते हैं? पॉइंट नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इंतहाई तसल्ली के साथ कहना चाहता हूँ कि उन दो पॉइंट्स में से सबसे पहला नंबर पॉइंट जो है वो इशू डिस्कस करनी है, वो मसला डिस्कस करना है, वो प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है, वो जो मुसीबत है उसको मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 1, और ये बॉडी के अंदर ही मेंशन करनी है। अगर आप लोगों ने इसको हाईलाइट किया तो फिर क्या होगा? इसकी हाइलाइशन से आप लोगों के लिए स्पेस बन जाएगी, और उसी स्पेस को फिल करने के लिए यू विल बी हैविंग द एम्पल टाइम टू मेंटेन और टू क्रिएट और टू फाइंड और टू सर्च सॉल्यूशन, रिजल्ट, मसले का नतीजा,
you can easily find. तो सबसे पहले क्या आएगा, इशू देन सोल्यूशन, प्रॉब्लम देन सोल्यूशन, एजेंडा फिर उसका हल। तो ये दोनों इंतहाई ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि इस डीओ को पता चले कि इस बंदे ने मुझे किस किस्म की शिकायत करनी और इसके लिए उसके जहन में हल क्या है। ये ज़िंदगी कानून बनाओ कि जो भी मसला आपको है, अपने रब को पहले वो मसला हल पेश कर दो और फिर उसका सलूशन भी रब मदद करने वाले हैं। सपोज आप लोग का पेपर है, आप लोग मसला ये है कि ए मेरे रबी ज़ुल जलाल, इस तरह आपको पता है कि मेरा कल पेपर है, पेपर इंतहाई मुश्किल है, मुझे कुछ भी मेरे जहन में अभी याद नहीं है, तू मेरे मदद कर ताकि मैं शर्मिंदगी से बच जाऊँ। मेरे वालिद साहब के जो पैसे यहाँ पर लग गए हैं वो हलाल का सबूत दे दे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, पेपर है, टेंशन में हूँ, मुसीबत में हूँ, फिर क्या है, मुझे पास करा दे ताकि मेरे वालिद का पैसे जो है वो हलाल हो जाए। ये सलूशन मैंने निकाल दिया, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़बान, हर वक़्त, हर मुल्क में किसी भी टाइम सुन सकता है, सिर्फ उसका नाम लेकर। तो यहाँ पर मैंने वाबडा के लिए, तो ही इज़ वन ऑफ द ह्यूमंस यू कैन से। तो इसके लिए फिर यहाँ पर आपने लिखना है यूअर्स ट्रूली, क्लियर, ये लिख लिया, देन इट विल बी ओके। फिर क्या होगा, लेट्स सी द रिजल्ट। और यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर XYZ मेंशन, ये पेपर के लिए अगर इस तरह आ जाए तो यहाँ पर XYZ है। अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लिखना है तो यहाँ पर आप अपना मुकम्मल डिटेल दोगे कि मेरा नाम क्या है, मेरे अबू का नाम क्या है, हम कहाँ पर रहते हैं। यू कैन मेंशन दीज थिंग्स। आई होप दैट यू हैव गॉट something related to this very application। आइए ज़रा देखते हैं, जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ कि उसको किस तरह डेवलपमेंट उसमें लेकर आनी है और किस तरह डेवलप करना है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह इसी व्हाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है और वो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जो टाइटल है एप्लीकेशन टू नेब, मैंने सैम्पल एप्लीकेशन टू नेबर लिखा है। और इसी के बाद किस तरह है, यहां पर यू कैन से एप्लीकेशन टू नेब फॉर करप्शन। किस तरह है, टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑन करप्शन, करप्शन के ऊपर आप लोगों ने मेंशन करना है। करप्शन की क्या है, दैट इज द जस्ट हाफ ऑफ द हेडिंग, क्लियर। तो यहां पर क्या करना है, नेब में जो बंदे होते हैं उसका जो लीडर होता है उसको चेयरमैन के नाम से हम पुकारते हैं। तो आपने लिख लिया द चेयरमैन, किसका चेयरमैन है, नेब का चेयरमैन, क्लियर। कहाँ पर है वो, पेशावर में है, ये आप लोगों ने मेंशन किया। और आप लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट से अंदाज़ा आप लोगों ने लगाना है कि सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है क्या है। सब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर एलिमिनेटिंग द करप्शन, करप्शन के खात्मे के लिए मैंने एप्लीकेशन लिखना है। या हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जो करप्शन के चर्चे हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा इधर उधर नज़र दौड़ाइए, ज़रा जो करप्ट सोसाइटी हमने बनाई है उसको थोड़ा सा रिपेयर करनी है, उसके लिए ज़रा ये है। और ये आप लोगों ने किस अंदाजे से यहाँ पर इशू और किस अंदाजे से यहाँ पर सलूशन को निकालना है। यहाँ पर अगर किसी बंदे को आपने पॉइंट आउट किया तो यू माइट बी इन द क्राइटेरिया और इन द कैटेगरी ऑफ द लोग, ये कहाँ से आ गए, ये कौन है। इस तरह नहीं करनी चाहिए, जनरलाइजेशन करनी है। या अगर आपने एक स्पेसिफिकेशन भी करनी है तो स्पेसिफिकेशन विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दलाइल के साथ आप लोगों के पास प्रूफ होनी चाहिए और उसी प्रूफ्स को मद्देनज़र रखते हुए यू कैन गो अहेड, क्लियर। तो फिर देखते हैं कि इसमें कहाँ पर आप लोगों से मतलब पेपर के दौरान लोग मार्क्स काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन करनी है, यू हैव टू मेंशन एंड यू हैव टू प्रेजेंट द इशू। मसला क्या है, क्लियर। मसला सपोज मैं ये लिख सकता हूँ कि सर और इकोनॉमी इज गेटिंग लो एंड लो डे बाय डे, and I know that this economy was not in this low condition in early days of my life, but it has got the lowest stage in its lowest position, and that's just because of the corruption which is going on in our society, in our country. Sir, it's highly requested
to look after these issues or these corrupt people, and you may know that who are doing corruption and who wants to be corrupt without getting the title of corrupt person. तो इसका ज़रा ख्याल रखिए। तो फिर देखते हैं कि ये जो हमारी इकॉनमी है किस तरह ज़मीन के तह से आसमान तक रसाई कर सकती है या रसाई हासिल कर सकती है। और इस किस्म की रसाई से क्या होगा, हमारे मुआशरे में जो हमारी इकॉनमी का स्ट्रेंथ है, हमारे पैसे का जो वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली बढ़कर हम आसानी से दूसरे ममालिक को हम कुछ दे भी सकते हैं और हमें उससे कर्जा भी दे सकते हैं, हमें उससे फ़ायदा भी दे सकते हैं और हम एक किस्म के खुद मुख्तार बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए करप्शन का ख़ात्मा करना है। और करप्शन का ख़ात्मा जो मैंने एक सलूशन निकाल लिया, इस किस्म की हज़ारों और लाखों मिसाल मौजूद है। हर बंदा अपने ज़िंदगी में अपने बस के मुताबिक करप्ट है। करप्शन क्या है? जो चीज़ आपके पास है उसको सही इस्तेमाल करना, अगर नहीं इस्तेमाल किया करप्शन है। करप्शन को हम सिर्फ पैसे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे एप्लीकेशन में पैसों के साथ जोड़ना चाहिए, बाकी ज़िंदगी में पैसों के साथ ज़रूर नहीं कि वो जोड़े। क्लियर? जिस तरह मुख्तलिफ पहलू हैं ज़िंदगी के, हर पहलू में लोग करप्शन करते हैं और करप्ट है। गाड़ियों में, बैंक में, स्टडी में, घर में, ताल्लुक में, रिश्ते में, रब के साथ जो करप्शन हम करते हैं, खुदा हमें इसका तौफीक दे ताकि हम इस किस्म के करप्शन से अपने आप को बचा दें। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने इस किस्म की एप्लीकेशन का जो नक्शा है जहन में बिठाया हो, इसको खूब सीखिए। अगर इस किस्म का एप्लीकेशन जब भी आ जाए, ट्राई योर वेरी लेवल बेस्ट एंड इंशाल्लाह यू विल गेट योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन एंड योर डिजायर्ड मार्क्स। क्लियर? जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।